Hello? Hello, Miss Natasha. Who is this? Do I really need to answer this question? Absolutely not, Mr. Kabir Singhania. What made you call me? वो भी इतनी रात को. Let's just say I wanted to have a conversation with you. Interesting. I think this conversation is about that case. Right, Mr. Singhania? That's correct, Miss Natasha. Well, Mr. Singhania, if you are under the impression कि ऐसे मुझे लेट नाइट कॉल करके तुम मुझे ये केस वापस लेने के लिए कन्विंस कर लोगे तो आई एम अफ्रेड यू आर गोइंग टू बी वेरी डिसअपॉइंटेड. I see. सो अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? Tell me, Miss Natasha, do you enjoy whiskey? Well, yes, I do enjoy it. पर क्यों? Well, apparently I don't enjoy it. But you know, sometimes I have to drink. क्योंकि कभी कभार मैं जिन लोगों से मिलता हूँ ना, वो लोग वो ड्रिंक अफोर्ड नहीं कर सकते जो मुझे अच्छी लगती है. So, I don't have a choice. इंटरेस्टिंग मिस्टर सिंघानिया, बट ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो? Just letting you know, Miss Natasha, कि अभी I'm drinking whiskey only. And you know why? क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ who's trying too hard to match me. But unfortunately, she can't. Oh, that is too harsh, Mr. Singhania. Anyways, तुम्हें यही बात करनी थी? Because now I have to go back to my job, which is to put you behind bars. Have a good evening, Mr. Singhania. Overconfidence precedes carelessness, Miss Natasha. अक्सर इतने confident लोग मुंह की खाते हैं. I'm telling you, just don't try too hard. Oh, don't worry, Mr. Kabir. I can do this. Trust me, I'm a big girl. But you don't have enough time, Miss Natasha. I'm not too worried. You see, the hearing date is 20th April, मतलब कि I still have a whole week, right? और तुम्हें पता होना चाहिए. Miss Natasha, listen. मैंने कब कहा कि तुम्हारे पास केस के लिए टाइम नहीं? What I was trying to tell you is you don't have enough time left in your life. तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है. Excuse me? Are you trying to blackmail me? Well, तुम्हारे कमरे की लाइट थोड़ी डिम है. You're sitting on a red couch और तुमने एक black one piece पहनी है जिसकी लेंथ बिल्कुल तुम्हारे knees तक है. And you're sitting cross-legged. How? What? कहाँ? कैसे देख पा रहे हो तुम मुझे? Are you spying on me? कैसा भद्दा मजाक है ये? What is going on, Mr. Kabir? It's not a joke, Miss Natasha. It's just a demo कि तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है. मिस्टर कबीर, तुम्हें सच में लगता है कि ऐसे डरा धमका के तुम मुझे ये केस ड्रॉप करवा दोगे? Really? Absolutely not. I don't want you to drop the case, Miss Natasha. Then why are you spying on me? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं. And you are the prime suspect in this money laundering case. And वही तो बात है, मिस नताशा, कि मैं अभी भी बस एक सस्पेक्ट हूं. कोर्ट में मैं अभी तक गिल्टी प्रूव नहीं हुआ हूं. डोंट वरी मिस्टर कबीर, कोर्ट बहुत जल्द तुम्हें क्रिमिनल डिक्लेयर कर देगी बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक इट हैपन. समझे? यू आर नॉट गोइंग टू गेट अवे विद एनी ऑफ दिस. और तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये होने दूंगा? तुमने अपने करंट लोकेशन की डिटेल्स ठीक से नहीं सुनी क्या? Or should I repeat it again? फिर से धमकाने की कोशिश कर रहे हो मुझे? आई कांट बिलीव दिस. इट्स अ लिटिल सैड, नो मिस्टर सिंघानिया? Actually,
I have a deal for you. ओ, तो अब दूसरे तरीके से धमकाने वाले हो मुझे? मिस नताशा, केस तो चलेगा. Don't worry. That's correct. It will and Hearing भी होगी. of course होगी. बट मुझे ये ऑब्वियस बातें बताने का पॉइंट क्या है? Nothing. We're just going to play a game. A game of sacrifice. What do you mean, Mr. Kabir? You know exactly what I mean. Question is, are you ready to play this game with me? Okay, now I got it. तो तुम अपने ऊपर लगे हुए चार्जेस किसी और पे डालना चाहते हो, right? You want to get away with everything and make it somebody else's problem. How brave of you, Mr. Kabir. You know, there's big prize money for the winner of this game. Oh, I see now. So you're not trying to blackmail me. तुम तो मुझे खरीदना चाहते हो, right? Well, some people call it salary, some call it prize money, and some call it a gift. It's up to you, but the question is, do you want to play this game? Oh, interesting. Okay, let's play this game. मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम किस हद तक जा सकते हो. मिस नताशा, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि कबीर सिंघानिया कितना शातिर खिलाड़ी है. Oh, शातिर. Okay, tell me one thing. ये जो तुम मुझ पे नजर रखे हुए हो, is it about this case या ये सब करने में तुम्हें मजा आ रहा है? What? Okay, let's not get confused. इसे अभी फिगर आउट कर लेते हैं. I don't know what you're trying to do, but please don't waste my time. अभी तुमने कहा ना that you could see me in my black dress. Yes. और तुमने ये भी कहा कि my legs are crossed, right? Yes, in fact, your right leg is on top of your left leg. It's true, right? Yes, that's true. Now how about I uncross them and make them wide open? How's the view? Natasha. What are you trying to do here? Nothing. Just letting you know कि अगर तुम zoom करोगे तो you might catch a glimpse of something really special. You know what I mean, Mr. Singhania? What happened, Mr. Kabir? Dim lights में कुछ चीजें ठीक से नहीं दिख रही क्या? Alexa, turn on the lights, maximum brightness. How about now, Mr. Kabir? Natasha, I don't have time for this nonsense. मेरी भी एक मीटिंग है. I'll call you later. Sure, Mr. Kabir. I'll be waiting for you. Mr. Kabir, अब देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ. Just wait and watch. Hello. So, you're back from work, Miss Natasha? Well, जब तुम मुझ पे नजर रखे ही हुए हो तो मुझे चेंज करने का मौका दे दिया होता. You can see ना I'm not properly dressed. Well, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, so don't be shy. Oh, I see. तो बताओ, कॉल क्यों किया तुमने? Well, you already know मैंने फोन क्यों किया है. Well, you know I'm changing, but फिर भी तुमने मुझे इस समय कॉल किया. So, I'm not sure तुम्हारे मन में क्या है exactly? Are you done, Miss Natasha? अगर मुझे सच में ऐसा कुछ करना होता तो मैं तुमसे फोन पे बात नहीं कर रहा होता. Oh, really? तो फिर क्या कर रहे होते तुम? Well, अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता तो तुम अभी मेरे साथ मेरे बेडरूम में होती. But it's all about the company, Miss Natasha. Oh, it's about the company, हाँ? जिसके साथ तुमने इतना बड़ा फ्रॉड किया है,
That company? Miss Natasha, don't waste my time. Can we please come to the point? Of course, it's my pleasure. Tell me. Remember कल हमने एक गेम खेलने की बात की थी. आज मैं तुम्हें उस गेम के रूल्स बताने वाला हूँ. तो बताओ, क्या रूल्स हैं तुम्हारे इस गेम के? एक सिंपल रूल. मैं तुम्हें तुम्हारा केस जिताऊंगा और तुम मुझे बदले में क्लीन चिट दोगी. Does that sound fair? Oh wow, how generous of you, Mr. कबीर. काफी सोचने लगे हो तुम मेरे बारे में. I can see that. कबीर सिंघानिया सिर्फ अपने बारे में सोचता है. अगर मिस्टर कबीर सच में अपने बारे में सोच रहा होता तो इस समय मैं उसके साथ उसके कमरे में होती. राइट मिस्टर कबीर? Natasha, you. Anyways, तुम मुझे कोर्ट में क्लीन चिट दिलवा रही हो, करेक्ट? होल्ड ऑन. अगर तुम्हें क्लीन चिट मिल गई तो मैं ये केस कैसे जीतूंगी? सिंपल. तुम्हें बस किसी और को फ्रेम करना होगा. अच्छा, और तुम्हें लगता है ये बहुत आसान काम है? हाँ? Don't worry, Natasha. I've already arranged all the documents for it. Oh, how considerate of you, Mr. कबीर. पर किसी और को फ्रेम करने से तुम्हें क्लीन चिट कैसे मिलेगी? That's where you come in, Miss Natasha. तुम्हें मेरे अगेंस्ट सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय करने होंगे. That's the point of this whole game. Oh, so that's where I come in this game of yours. Exactly. So evidence को डिस्ट्रॉय कब करने वाली हो? तुमने जो डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए हैं वो कब देने वाले हो? Natasha, don't try to act smart with me. This is not a negotiation, and I'm not here for a negotiation. Natasha, what are you doing? As if you can't see me. Yes, I can see you. ये तुम क्या कर रही हो? कबीर, क्या कर रही हूँ? What am I doing? You know I can see you, but still तुम्हें अभी शावर लेना है. कबीर कबीर कबीर, माय डियर स्वीट कबीर. गेम्स खेलते वक्त पॉजेस लेने भी तो जरूरी होते हैं. इसे वही समझ लो. Well, तुम शावर मेरे फोन रखने के बाद भी कर सकती थी, राइट? You're right, but वो क्या है ना मिस्टर कबीर, मेरे पास उतना वक्त नहीं है. और वैसे भी तुमने ही तो मुझसे कहा था ना कि I don't need to be shy. So, yeah. और दूसरी बात, मैं ये कैसे मान लूं कि कॉल कट होने के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे? We already know you have all the arrangements in place. Natasha, I don't have time for this nonsense. So let's talk later. Bye. ओ कबीर कबीर, ये तो तुम जानते हो कि हम दोनों एक खेल खेल रहे हैं, पर तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हम दोनों अलग अलग खेल खेल रहे हैं. हेलो Natasha, I hope तुम शावर से निकल चुकी होगी. Were you not watching me today, Mr. Kabir? क्यों? Your camera not working? Well, मैंने तुम्हें शावर में जाते हुए तो देखा था. But then I put my laptop away. You know what? You are such a gentleman, Mr. Kabir. I am impressed. Although I'm a bit concerned. Do I not interest you anymore? Miss Natasha, at the moment, इस केस से ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे लिए कुछ नहीं है. एक बार ये केस क्लियर हो गया, उसके बाद we can definitely talk about my other interests. तो तुम्हें आज बस काम की बात करनी है, right? Of course.
लेट्स गेट टू द पॉइंट मिस नताशा। तुम मेरी डील एक्सेप्ट कर रही हो या नहीं? मिस्टर कबीर, सॉरी मिस्टर कबीर, आई एम गेटिंग अ कॉल। मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ, हाँ? श्योर। आधा घंटा हो गया। The line is still busy. I should call her later then. उसने फोन काट दिया मेरा। What's going on? Let me check the footage. Huh. She's crying. But why? मेरा फोन भी पिक नहीं कर रही अब। Let me call her again. Hello? Natasha? Natasha, I tried calling you, but... Mr. Kabir, can I talk to you later? I'm not in the right mindset right now. I'll call you back. But what happened? Why would you care, Mr. Kabir? तुमने ही कहा ना कि तुम्हें बस काम के बारे में बात करनी है अभी। Well, मैं अभी काम के बारे में बात नहीं कर सकती, so let's just talk later, okay? Bye. Okay, I see. We'll talk later. Mr. Kabir, I think I told you कि मैं अभी... You have a boyfriend, Natasha? Excuse me? I said, do you have a boyfriend? Mr. Kabir, इसका इस केस से क्या लेना देना? Exactly. इस कॉन्वर्सेशन का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस तुम्हें एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ। ये जान के तुम क्या करोगे, मिस्टर कबीर? I can't do this right now. Let's just say I want to know you better. अपने दुश्मन को जानकर क्या करोगे कबीर? What's the point? इस केस के खत्म होने के बाद you and I won't be enemies, Miss Natasha. और वो कैसे? Well, जब तुम डील एक्सेप्ट कर लोगी तो we'll be partners, right? सिली में मुझे लगा था हम काम की बात नहीं करने वाले थे। हाँ, I should know better. Well, you're right. So tell me, Natasha, why were you crying? Some personal reasons, Mr. Kabir. It's nothing else. Tell me, maybe I can help. और क्यों करोगे तुम मेरी हेल्प? What's in it for you? डील एक्सेप्ट करने के बाद हो सकता है we work as partners in the future, so ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि I take care of you. How nice of you. वेल मिस्टर कबीर, मेरी प्रॉब्लम्स को तुम फिक्स नहीं कर पाओगे और वैसे भी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस तो सबको होता है एंड इट्स नथिंग. I'll be okay. ओह, सो तुम अपने काम की वजह से रो रही थी? वेल हाँ, अब इतने बड़े केस को बीच में फंसा कर रखूंगी तो डांट तो पड़ेगी ना. What do you mean? कुछ नहीं, बस मेरे क्लाइंट्स मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि कबीर सिंघानिया के खिलाफ और भी एविडेंस क्यों नहीं कलेक्ट कर रही हूँ मैं. अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि रहने दो कबीर, तुम ये बातें कहाँ समझोगे. तुम तो बस अपने बारे में सोचते हो ना. सो कीप इट दैट वे. वैसे इट्स अ नाइस क्वेश्चन. आखिर तुम मेरे अगेंस्ट बाकी एविडेंस कलेक्ट क्यों नहीं कर रही हो? I've never seen you taking any steps regarding that. I don't know, Mr. कबीर. शायद मैं भी उस फेज से गुजर रही हूँ जहाँ इंसान को पता होता है कि वो गलती करने वाला है, पर फिर भी वो उसी रास्ते में चलता रहता है. Maybe I'm one of those people now. तो क्या सोच रही हो? गलती करोगी या नहीं? It's not that simple.
घबरा रही हूँ कबीर कि अगर मैंने इम्पल्सिवली कोई स्टेप ले लिया तो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं बचेगा, राइट? What do you mean? See? Just like that we're back to talking about work. मिस्टर कबीर, कुछ तो है जो मुझे तुम्हारे खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करने से रोक रहा है, और ऑनेस्टली यही नहीं, मैं तो तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंसेस भी डिस्ट्रॉय करने की सोच रही थी. I can't explain it. Oh, so you were thinking about the deal? Maybe, but I don't know. But मिस्टर कबीर, you are a businessman. तुम अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो. I don't know if I should. I don't know. well, I won't deny it, Natasha. मैं अपना फायदा हर जगह देखता ही हूँ. एंड बस यही रीजन है कबीर कि मैंने उस डील को लेकर कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लिया. आई नो इट्स अ बेनिफिटेबल डील फॉर मी, बट फिर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए और फिर तुमने मुझे बदले में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो I'll be ruined, my reputation, my career. I'm not a businessman, but I'm not stupid, Kabir. बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ मैं, इसलिए मैं डर रही हूँ कि ये मौका हाथ से छूट ना जाए. This is huge for me. I know this is just another case for you, but it's huge for me. Miss Natasha, check your email. What email? क्यों? Just check it. मिस्टर कबीर, ये What? So tell me, Miss Natasha, अभी भी डर है गिरने का? I have just shared with you the documents जिसके बारे में हमने कल बात की थी. ये वही फाइल्स हैं जिससे हम ये केस किसी और के ऊपर डाल सकते हैं. ये मेरा अल्टीमेट वेपन था. If you want, you can use this as evidence in court. और मेरी सजा भी बढ़ा सकती हो. So the ball's in your court now. Do as you wish. कबीर, but why? आखिर क्यों? Why would you send this to me? डील तो ये थी कि मैं पहले तुम्हारे खिलाफ एविडेंस डिस्ट्रॉय करूंगी, उसके बाद ही तुम ये भेजोगे. तो फिर तुमने मुझे ये डॉक्यूमेंट्स अभी क्यों भेज दिए? What if I don't destroy the evidence now? Let's just say मैं भी उसी फेज से गुजर रहा हूँ जहाँ इंसान को पता होता है कि वो गलती करने वाला है, पर फिर भी वो उसी रास्ते में चलता रहता है. It's good to know that at least I'm not alone. Anyway, I hope your mood is better now. I'll call you tomorrow to talk about the deal once again. Goodbye. Wait. Wait, Mr. Kabir. Yeah, tell me. क्या तुम मुझे अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर देख पा रहे हो? Well, हाँ, क्यों? Just wait. ये क्या कर रही हो तुम? इतने सारे फाइल्स को तुमने ट्रैश कैन में क्यों फेंक दिया? Just wait. अब कहाँ जा रही हो? तुम विस्की पीने वाली हो? Not exactly, Mr. Kabir. Just wait. Then, what are you planning to? ये विस्की तुम ट्रैश कैन में क्यों डाल रही हो? Why are you wasting it? What? ये कौन सी फाइल जला दी तुमने? What are you doing? एक्चुअली ये वही फाइल्स हैं जिसमें तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंसेस थे. पुफ, गॉन. नताशा, ये मिस्टर कबीर, वी हैव अ डील. कोर्ट में हियरिंग तो होगी, अक्यूज्ड को सजा भी मिलेगी, बट यू मिस्टर कबीर विल बी फ्री. Cheers to our deal then.
मिस नताशा। जितना मुझे लगा था, तुम तो उससे भी ज्यादा बड़े बेवकूफ निकले मिस्टर कबीर। मुझे ये फाइल्स भेज के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे खिलाफ एविडेंस जला दूंगी तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं होगा तुम्हें फ्रेम करने का? एविडेंस तो मैंने इसलिए जलाए क्योंकि तुम्हें उनकी भनक लग चुकी थी और मुझे पता था हो ना हो तुम उन्हें झूठा साबित करने की पूरी कोशिश करोगे। बट नाउ तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं तुम्हारे ही भेजे हुए इन फाइल्स से तुम्हें कैसे फंसाने वाली हूं। What was his name? His name. हाँ, ये रहा, अनंत चौबे। परफेक्ट। इसी को फंसाने की कोशिश में हो ना तुम। अब देखो मैं पूरा गेम कैसे पलटती हूँ। Let me call this अनंत चौबे। हेलो मिस्टर अनंत, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कौन? नताशा। कौन नताशा? वही नताशा जो आपके बॉस कबीर सिंघानिया के खिलाफ केस लड़ रही है। सेम वन। तुम क्यों फोन किया मुझे? लिसन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे थ्रू कुछ एविडेंसेस कलेक्ट कर लोगी तो you're wrong. प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। मुझसे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। Oh, how loyal of you, Mr. अनंत। It looks like आप मिस्टर कबीर के काफी खास हैं, नहीं? I don't need to answer any of your questions, Miss Natasha. Please, आप अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। क्वेश्चंस? वक्त बर्बाद? मैंने तो आपसे कोई सवाल पूछे ही नहीं और ना ही मेरे पास कुछ है आपसे पूछने के लिए। अगर ऐसा है तो तुमने मुझे फोन क्यों किया है? मुझे तो एक्चुअली बस यही जानना था कि आपके घर का लोन चुकता हो गया। What nonsense? हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने घर लोन लेके खरीदा था, राइट? जो आप मंथली EMI पे करते हो। आपका घर लीला अपार्टमेंट्स में है और हाँ, आपकी एक प्यारी सी बेटी भी है जो क्राइस्ट चर्च स्कूल की स्टूडेंट है। आई मस्ट से काफी एक्सपेंसिव है वो स्कूल। मिस्टर कबीर आपको अच्छा पे करते होंगे, नहीं? What the hell is this? Are you trying to blackmail me? और ये डिटेल्स कहाँ से पता किए तुमने? और तुम्हें मुझसे क्या मतलब है? सर, पेशेंस इज अ वर्च्यू। बताती हूँ, सब बताती हूँ। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो हमने बातें शुरू ही की हैं, राइट? देखो, मेरे पास तुम्हारे बकवास के लिए वक्त नहीं है। चुपचाप बताओ, तुम्हें मेरे बारे में डिटेल्स कैसे पता है और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मिस्टर अनंत, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ, आने वाले वक्त में आपको मेरी जरूरत जरूर पड़ सकती है। What do you mean? भला मुझे तुम्हारी क्यों जरूरत पड़ने लगी? क्योंकि अगले 2 दिनों में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। What do you mean? एक मेल भेजा है आपको। Why don't you check it? या sent. मेल? What the hell is this? ये क्या भद्दा मजाक है? अरे, इतना चौंक क्यों गए? Stop playing games, Natasha, and tell me, what is the meaning of all this? ऑल राइट, तो इस सब का मतलब बस इतना है मिस्टर अनंत कि आने वाली हियरिंग में आपके बॉस मिस्टर कबीर फ्री हो जाएंगे और मैं आपको मुजरिम साबित कर दूंगी। What? अरे, आप तो शॉक हो गए। What is this? और ये fake evidences, ये सब क्या है? इन ट्रांजैक्शंस में मेरा नाम क्यों है? मनी लॉन्ड्रिंग का केस ऐसे ही तो बनता है मिस्टर अनंत। इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, है ना?
केस बनाने का क्या मतलब है जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो? एविडेंस पे कोर्ट फैसला सुनाती है मिस्टर अनंत, और इन डॉक्यूमेंट्स की माने तो ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग का खेल आपका था, मिस्टर कबीर का नहीं। बट ये डॉक्यूमेंट्स फॉल्स है। मैंने कुछ किया ही नहीं है ऐसा। ये सब डॉक्यूमेंट्स झूठे हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल। वो क्या है ना, मुझे मिस्टर कबीर ने तो यही दिया था। मिस्टर कबीर ने? क्या मतलब? ओ हाँ, मैंने तो आपको बताया ही नहीं। ये पूरा प्लान उन्हीं का तो है। सो ऑफ कोर्स ही इज द वन हु गिव मी ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। व्हाट? हाँ, यही तो प्लान है। आपके ऊपर सारे चार्जेस लगा के ही विल बी अ फ्री मैन। पर क्या हुआ? आप तो लॉयल हो, राइट? इतना तो कर ही सकते हो मिस्टर कबीर के लिए, नहीं? कर सकते हो ना? नताशा, ये क्या है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दिस इज रॉन्ग। आई नो मिस्टर अनंत, रॉन्ग तो है, पर डिसाइड तो यही हुआ है। ऑन करंट फॉर्म दिस इज द प्लान। नताशा, मेरी फैमिली है, बच्ची है मेरी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो तो है मिस्टर अनंत, पर आप लॉयल ही इतने हो मिस्टर कबीर के कि आप और कोई स्टेप ले ही नहीं पाएंगे, राइट? इट्स ऑल वर्थ इट फॉर लॉयल्टी इन द एंड। और कोई स्टेप? व्हाट डू यू मीन? और कोई स्टेप? वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि इस पोजीशन में आप किसको सेव करना चाहते हो। यू नो, खुद को सेव करना चाहते हो या अपने बॉस मिस्टर कबीर को। दैट चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। घबराइए नहीं, आई एम श्योर कि मिस्टर कबीर अपने एम्प्लॉय के फैमिली का ख्याल तो रख ही लेंगे, और आई थिंक सेंटेंस ज्यादा हार्श भी नहीं होगा। यही कोई 30 साल आपको चलेगा ना ये मिस्टर अनंत? जस्ट 30 years। I have a daughter, Natasha. I have a family. मैं बर्बाद हो जाऊंगा। How can you do this to me? मैंने क्या बिगाड़ा था उनका? अरे आपको तो पता होगा ना कि मिस्टर कबीर बस अपने बारे में सोचते हैं। That's his catchphrase, नहीं? बर्बाद हो जाऊंगा मैं, बर्बाद। हालांकि अभी भी एक तरीका है जिससे आप खुद को बचा सकते हैं। हाँ, क्या तरीका? कैसे? बताओ। तरीका आसान है, बस आपको मेरे लिए गवाही देनी होगी। Just that much। गवाही? कैसी गवाही? आप तो अकाउंट संभालते हो ना, आपको तो सब पता है मिस्टर कबीर के बारे में। अगर आप कोर्ट में मेरे लिए गवाही दे देंगे तो शायद आपको मैं आसानी से बचा सकती हूँ। If that's something you're interested in, I don't want to force you। मिस्टर कबीर के खिलाफ गवाही? जी, पर चॉइस और डिसीजन लाइक आई सेड आपकी है। यू चूज। आपको कौन प्यारा है, मिस्टर कबीर या आपकी फैमिली, आपकी लॉयल्टी या आपकी बेटी? मिस्टर अनंत, 2 दिन बचे हैं हियरिंग में, और अगर कल तक आपने मुझे रेस्पॉन्ड नहीं किया तो मैं यही समझूंगी कि आपने मिस्टर कबीर को चूज किया है। इज दैट अ फेयर असम्पशन? बाय मिस्टर अनंत। आई होप हमारी बात जल्द। वेट। यस? बोलिए मिस्टर अनंत, कुछ कहना था आपको? आई एम रेडी। रेडी? रेडी फॉर व्हाट मिस्टर अनंत? मैं दूंगा गवाही। मिस्टर कबीर के खिलाफ? हाँ, मैं दूंगा गवाही। Fantastic. I will see you in court. It was such a pleasure talking to you.
Say hi to your daughter from me. Have a great evening. Bye. अब देखो मिस्टर कबीर, कोर्ट में मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ. ये गेम तुमने ही शुरू किया था ना? But now the game is all under my control. This will be fun. Who's calling me at this time now? Oh, कबीर सिंघानिया. कैमरे में देख लिया होगा इसने मुझे रेडी होते हुए. वैसे भी आज हियरिंग है. आई एम श्योर ही विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं उसके गेम के अकॉर्डिंग चल रही हूँ. टाइम टू प्ले द रोल. हेलो मिस नताशा, गुड मॉर्निंग टू यू. गुड मॉर्निंग मिस्टर कबीर. तुमने सुबह कैसे फोन कर लिया? तुम्हें तो रात में फोन करने की आदत है ना? समथिंग स्पेशल? हाँ, पर आज के दिन सुबह ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सो वेल ऑफ कोर्स. आज हियरिंग जो है. सो ऑल गुड. यस मिस्टर कबीर, ऑल गुड, ऑल सेट. मिस नताशा, यू रिमेंबर व्हाट वी डिस्कस्ड, राइट? अरे ऑफ कोर्स मिस्टर कबीर, वी हैड अ डील, रिमेंबर? Should I leave everything in your hands? बिल्कुल. आई विल मेक श्योर कि काम अच्छे से पूरा हो. डोंट वरी अबाउट इट. Okay. So let's talk after the hearing. At night? मुझे तो लगा था इतने बड़े केस से पीछा छूटने के बाद यू विल बी हैप्पी, यू वुड लाइक टू पार्टी, बट यू सरप्राइज्ड मी अगेन. तुम तो बस एक कॉल से चीजें निपटा रहे हो. दैट्स नॉट वेरी हॉस्पिटेबल ना? Don't worry. अभी अभी तो हम पार्टनर्स ही बने हैं. अब तो पार्टीज होती रहेंगी. I can't wait to attend them. All right then. I'll see you in court. Sure. Bye, Mr. Kabir. I'll see you then. बस कुछ देर और मिस्टर कबीर, और उसके बाद तुम्हें लाइफ की सबसे बड़ी हार मिलने वाली है. फिर करते रहना पार्टी जेल में. चलो, आई शुड लीव. इट्स अ बिग डे फॉर मी एज वेल. योर ऑनर, अब मैं इस केस से रिलेटेड एक गवाह पेश करना चाहती हूँ. एक ऐसा गवाह जो पूरे केस को पलट कर रख देगा, जिससे पूरे कोर्ट को सारी की सारी सच्चाई पता चल जाएगी. योर ऑनर, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर अनंत चौबे. मिस्टर अनंत चौबे, आज आप इस कोर्ट में सब कुछ बता दीजिए जो आप जानते हैं, ताकि कोर्ट को और हम सभी को असलियत का पता लग सके. गो अहेड मिस्टर अनंत, इट्स योर टाइम टू शाइन. योर ऑनर, आज मैं इस कोर्ट को एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे सुनकर यहां मौजूद लोग हैरान रह जाएंगे. योर ऑनर, मिस्टर कबीर सिंघानिया पर ये जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये झूठा है. मिस्टर अनंत, आप सभी ने सही सुना. ये पूरा का पूरा खेल मिस नताशा का खेला हुआ है, जिन्होंने पब्लिसिटी पाने के लिए ये पूरा गेम खेला. पहले इन्होंने मिस्टर कबीर के खिलाफ फेक एविडेंसेस बनवाए और फिर उन पे केस किया. पर जब वो उसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो उन्होंने 2 दिन पहले मुझे फोन किया. मिस्टर अनंत, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? Miss Natasha, let the witness speak. पर योर ऑनर, ही Miss Natasha, please. योर ऑनर, परसों के कॉल में मिस नताशा ने मुझे साफ साफ बोला कि कैसे इन्होंने मिस्टर कबीर को फंसाया है. और तो और इन्होंने मुझे ब्लैकमेल भी किया कि अगर आज मैंने मिस्टर कबीर के खिलाफ गवाही नहीं दी तो
ये फेक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुझे भी फंसा देंगी। इन्होंने मुझसे बात करते हुए एक मेल भेजा था जिसके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ क्लियर कर देंगे कि एक फेक एविडेंस बनाना कितना आसान है। मैंने मिस्टर कबीर के लॉयर को अपने ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट की फोटोकॉपी और ये फेक डॉक्यूमेंट दोनों दे दी थी। वो आपके डेस्क पर होंगे। आप देख सकते हैं मिस नताशा ने कितनी बारीकी से फेक एविडेंस क्रिएट किया है ताकि मुझे वो ब्लैकमेल कर सके। योर ऑनर, आई रिक्वेस्ट यू कि मिस्टर कबीर के खिलाफ सारे चार्जेस वापस ले लिए जाए और मिस नताशा पर ब्लैकमेलिंग एंड टैंपरिंग विद एविडेंस के चार्जेस लगे। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, ये झूठ बोल रहे हैं। ही इज लाइंग। मिस नताशा, आपके लिए अब यही बेहतर होगा कि आप कुछ ना बोले। व्हाट? तमाम सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मिस्टर कबीर सिंघानिया को निर्दोष ठहराती है और मिस नताशा को फॉल्स केस और फॉल्स एविडेंस के केस में 6 महीने सस्पेंशन का सेंटेंस सुनाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। Damn it, his phone is not reachable. Damn you, Kabir Singhania. Damn you, damn you, damn you. Hello? Hello, Miss Natasha. You bastard. How dare you play me like this, you son of a bitch? गेम बस मैं ही नहीं खेल रहा था मिस नताशा, गेम तो तुम भी खेल रही थी। डिफरेंस इतना है कि यू लॉस्ट एंड आई वन। अनंत चौबे हमेशा मेरा ही आदमी था मिस नताशा। मुझे पता था कि तुम उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करोगी और वही हुआ। पर लुक्स लाइक मेरे प्लान्स तुम्हारे प्लान्स पर भारी पड़ गए। इट वाज योर मिस्टेक कि तुम मेरे गेम को समझ नहीं पाई। Kabir Singhania, you son of a bitch. वैसे I'm having a party at my house, Miss Natasha. You're invited, of course. Shut up. Just shut up, you asshole. How could you do this to me? शायद तुम भूल गई नताशा, कबीर सिंघानिया बस अपने बारे में सोचता है। गुड नाइट एंड गुड बाय।